Good morning, ma'am. Good morning. We were discussing beta and gamma function, and I think we have to start with the questions based on this topic. Have I done this derivation that relates gamma and beta function? Relation between gamma and beta function? Yes, Proof ma'am. of this? Okay, this has been done now. Yes, ma'am. Now we're going to do questions on based on this. The first question is that you have to show that this relation holds. According to this relation, n times beta of m plus 1 comma n is equal to m times beta of m comma n plus 1. So first जो आपको left hand side we have considered it. N has been kept as it is. Then the beta function has been written in terms of gamma function. So beta of m plus 1 comma n will be gamma of this first number, which is gamma of m plus 1 into gamma of second number, gamma of n. In the denominator will be gamma of summation of these two functions, which is m plus 1 plus n. So you have n times beta of m plus 1 comma n equal to n times gamma of m plus 1 into gamma of n divided by gamma of m plus n plus 1. Now this n, इसको हमने इस gamma of n के साथ लिखा है and you know that n times gamma of n is equal to gamma of n plus 1. ये प्रूफ किया था हमने? Yes or no? Yes, ma'am. And this beta gamma of m plus 1 can be written as m times gamma of m. तो हमने इसको कंबाइन करके सिंगल गामा फंक्शन लिखा और इसको हमने रिड्यूस किया है टू अ स्मॉलर गामा फंक्शन. नाउ दैट दिस m कैन बी टेकन एज कॉमन. नाउ लुक एट दिस इज गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n प्लस 1. डिनोमिनेटर में गामा इन दोनों का समेशन है m प्लस n प्लस 1. सो दिस इज नथिंग बट बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 आउटसाइड में n, विच इज योर राइट हैंड साइड. To prove this, you just have expressed your beta function in terms of gamma function, then you have used the gamma properties, and then again written the resultant form in terms of beta function. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Now next, you have to prove that value of the integral from 0 to pi by 2 sine cube theta cos pi by 2 theta d theta is equal to 8/77. अगर आप ध्यान से देखो साइन और कॉस दोनों को रिलेट करते हुए पावर्स में जो रिप्रेजेंटेशन है और इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 वो आपकी बीटा की रिप्रेजेंटेशन में है. बीटा की एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन गामा में भी है. अगर आप बीटा की साइन वाली रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको देखो दोनों नंबर्स मिलते हैं, साइन और कॉस दोनों मिलते हैं. और अगर गामा की आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे हमने गामा की कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की ही नहीं है, सिर्फ हमने बीटा फंक्शन की है. तो हम ये क्या करेंगे, ये जो बीटा फंक्शन है बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, हम ये वैल्यू ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व आवर गिवन इंटीग्रल. तो सबसे पहले हमने रिजल्ट लिखा है कि 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ 2m माइनस 1 थीटा कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा इज इक्वल टू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस 1. ये हमने रिप्रेजेंटेशन से लिखा है. बीटा m कॉमा n इसके बराबर होता है और बीटा को फिर गामा की टर्म में लिखा हुआ है. ठीक है, दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर किया हुआ है. नाउ अब आपको यहाँ पे साइन की पावर 3 चाहिए, यहाँ पे साइन की पावर 2m माइनस 1 है. हम m की ऐसी क्या वैल्यू चूज करें कि 2m माइनस 1 की वैल्यू 3 आ जाए? टेल मी, m की वैल्यू बताओ जिससे 2m माइनस 1 की वैल्यू 3. इट विल बी 2 2 2 4 माइनस 1 3. तो हमने m को यहाँ पे 2 पुट करेंगे. नाउ cos की जो पावर है यहाँ पे 5/2 है और यहाँ पे 2n माइनस 1 है. सो 2n माइनस 1 इक्वल टू 5/2 पुट करके आप सॉल्व करें ना, n की वैल्यू विल कम आउट टू बी 7/4. तो हम क्या करेंगे, अबव इक्वेशन में m की वैल्यू 2 पुट करेंगे और n की वैल्यू 7/4. So you will get 0 to pi by 2 sine cube theta cos 5/2 theta d theta is equal to gamma of 2, gamma of 7/4 upon the gamma of 2 plus 7/4. Now gamma of 2 will be 1 factorial, which is 1.
गामा ऑफ 7/4 को एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर में ऐड किया, 4 2 8, 8 plus 7 15. So in denominator you have gamma of 15/4. Now gamma की हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं डिनोमिनेटर में. Gamma of 15/4 can be written as 15/4 minus 1 into gamma of 15/4 minus 1. हमने प्रॉपर्टी यूज की है gamma of n is equal to n minus 1 into gamma of n minus 1. Is this step clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now 15/4 minus 1 will be 11/4 into gamma of 11/4. Again इसमें हमने यही वाली प्रॉपर्टी फिर से यूज की है. You will get 11/4 into 7/4 gamma of 7/4. जो न्यूमरेटर में gamma 7/4 है will cancel out and you will obtain 16/77, the value of this expression. अब हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो सिर्फ इसकी निकालनी थी 0 से π/2. आउटसाइड में 2 वाले की नहीं निकालेंगे. तो 2 को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे. इट विल बिकम 8/77, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल ओनली. क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो हमारे साथ उसमें 2 नहीं है. तो 2 को हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे. 16/77 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 8/17. यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई. यहाँ पे 8 लिखा हुआ है. इट शुड बी 16. Then your resultant answer will be 8/77 that you have to prove. एग्जाम में जो बीटा गामा के क्वेश्चंस आएंगे वो इस पैटर्न पे आएंगे कि आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा, आपको वैल्यू पुट करनी है, देन आपको गामा फंक्शन इवैल्यूएट करना होगा. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, you have to express this integral 0 to 1 x की power m 1 minus x की power n whole raised to the power p dx in terms of gamma function. आपको पता है अगर आप इसको एक सिंपल बीटा फंक्शन में एक्सप्रेस कर लोगे तो बीटा को गामा फंक्शन के टर्म्स में लिखना इज वेरी इजी. बीटा में क्या होता है x की पावर समथिंग इनटू 1 माइनस x की पावर समथिंग. बट यहाँ पे जो 1 माइनस x है वहां पे x के साथ क्या है, x की पावर n है. तो हम क्या करते हैं, पहले ये अंदर वाला जो 1 माइनस वाला है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए x की पावर n को हम t पुट कर रहे हैं. इज दिस क्लियर कि x की पावर n को t क्यों पुट करें? क्योंकि बीटा फंक्शन में क्या होता है, x की पावर m 1 माइनस x की पावर समथिंग इनटू dx. तो यहाँ पे तो x की पावर n है, तो सबसे पहले हम इसको दूसरा वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं बाय रिप्लेसिंग इट बाय t. So this term will become 1 minus t की पावर p. So we have put substituted x की पावर n is equal to t. Then your dx. This अगर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड को, यू विल गेट n x की पावर n minus 1 dx is equal to dt. So value of dx will be dt upon में n x की पावर n minus 1. Are these steps clear to everyone? Yes, ma'am. Now अगर x की पावर n is equal to t है, then x की वैल्यू क्या होगी, t raised to the power 1 by n. Yes or no? Value of x will be t raised to the power 1 by n. इस इंटीग्रल में हम पुट करते हैं. लोअर लिमिट x की 0 है, 0 की पावर n will be 0, so t की लोअर लिमिट will be 0. x की अपर लिमिट 1 है, 1 की पावर n will be 1, so अपर लिमिट ऑफ t will be 1. x की वैल्यू t की पावर 1 by n पुट करो, होल रेज टू द पावर m. 1 माइनस x की पावर n t है, हमने t पुट किया, रेज टू द पावर p. dx की वैल्यू क्या आती है, dt अपॉन में n t की पावर, देखो यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है, x आपका क्या होगा, t की पावर 1 बाई n, सो इट विल बिकम t की पावर n माइनस 1 अपॉन में n. 1 बाई n को कॉमन लिया नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे t की पावर m बाई n होगी और यहाँ पे t की पावर ये और डिनोमिनेटर में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 1 माइनस t की पावर p dt. यहाँ पे भी हमारी डिनोमिनेटर सेम है t की पावर में, तो न्यूमरेटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इट विल बिकम m माइनस n प्लस 1 अपॉन में होल n, और फिर हमने उसको सेपरेट करके लिखा है. अब अगर आप ध्यान से देखो
If you write this p as p plus 1 minus 1, अगर आप ध्यान से देखो अब आपका एक बीटा फंक्शन बन रहा है. बीटा फंक्शन कैसे? t raised to the power m plus 1 n minus 1 1 minus x raised to the power p plus 1 minus 1. बीटा फंक्शन में क्या होता है? t की पावर a माइनस b 1 माइनस t की पावर b माइनस 1. जो a है वो हमारा m plus 1 अपॉन n है और b जो है वो हमारा p plus 1 है. So this whole expression और इंटीग्रल हमारी 0 to 1 ही है. So this is बीटा of m plus 1 upon n comma p plus 1. और इस बीटा फंक्शन को आप गामा फंक्शन की टर्म्स में लिख ही सकते हो. Is this clear to everyone? जी मुझे ऐसा Yes, फील ma'am. हो रहा है कि सबको समझ नहीं आ रहा है. Is this so? तो आप मुझे बता सकते हो. सबको क्लियर है ना बीटा गामा फंक्शन क्या Yes, होता ma'am. है और कैसे? Okay. So now do this question. You have to find out the value of this integral 0 to 1 x square 1 minus x square की power 4 dx. अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया उसी की तरह है. x square को t सब्स्टिट्यूट कर लेना और फिर इसको सॉल्व करो. टेल मी क्या आंसर आ रहा है. एक्स स्क्वायर को टी पुट करो और जैसे हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन किया है जनरलाइज्ड. हमारे पास यहाँ पे m और n था. यहाँ पे m और n दोनों की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू 4 है. Has anyone solved this question? जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उससे कंपेयर करें. वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m n and p and then we can directly put that value in this generalized formula that we have obtained. और यू कैन डू स्टार्टिंग से भी आप सब्स्टिट्यूट करके डिराइव कर सकते हो और फिर कर सकते हो आप. किसी ने ट्राई किया आपने से अभी तक? मैम सब्स्टिट्यूट करा है. ओके ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लो. Yes, ma'am. लास्ट में आपका ये आना चाहिए. सब्स्टिट्यूट करके अगर आप करोगे ना 128 by 3, 460. 3465 आ रहा है डिनोमिनेटर में. Yes, ma'am. चेक कर लेना कैलकुलेशन. Then with this your beta and gamma function has been covered.
बस इतना सारी टॉपिक और ध्यान से प्रिपेयर करना. इट्स वेरी इजी एंड नॉर्मली क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम दिस टॉपिक. Shall I start with another topic? अगर किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में, you can ask me. Otherwise, I will start with the next topic. So I'm assuming that none of you have any doubt. I'm starting with the next topic. Now just consider this function y is equal to 1 upon x minus 2. Okay. Now tell me at what point this function will be undefined? मैम x is equal to 2. क्यों x is equal to 2 पे अनडिफाइंड क्यों होगा? क्योंकि जब x की वैल्यू 2 अप्रोच करेगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर किसको अप्रोच करेगा? 0. 0. और फिर दैट मीन्स y will be approaching Infinity. yes or no? अगर मैं ग्राफ भी देखूं, ग्राफ में मैंने कई सारी वैल्यूज ली हैं, 0, 1, 1.5, क्लोजर टू 2 वैल्यूज ली हैं फ्रॉम दिस एंड एंड देन फ्रॉम दिस एंड. आई एम सीइंग दैट एज माय वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू, माय कर्व इज अप्रोचिंग इंफिनिटी. अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही हूँ तो नेगेटिव इंफिनिटी, और राइट साइड से अप्रोच कर रही हूँ तो y इज अप्रोचिंग पॉजिटिव इंफिनिटी. यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर आप देखो तो वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हो. नाउ अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप एक चीज और देख रहे हो कि जैसे जैसे y की वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 को, आपका x किसको अप्रोच कर रहा है? Infinity. अगर देखो अगर हमारा y अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, y इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन x इज अप्रोचिंग नेगेटिव इंफिनिटी, और x हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है. अगर हम राइट साइड से देखें y की वैल्यू 0, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो. अगर मैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2 है, सॉल्व करते हैं y के लिए, सो यू विल गेट x के लिए, यू विल गेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन y. So your x will be 1 by y plus 2. So जैसे जैसे y की वैल्यू 0 अप्रोच करेगी तो हमारा 1 by y अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, और इंफिनिटी में कुछ 2 ऐड करें तो भी वो क्या होगा? इंफिनिटी. अभी हमने बात करी है पॉजिटिव एंड से. अगर y अप्रोच करता है 0 नेगेटिव एंड से तो ये नेगेटिव इंफिनिटी होगा. नेगेटिव इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है नेगेटिव, उसमें एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगी, अगेन इट विल अप्रोच नेगेटिव इंफिनिटी. सो इज दिस ये जो अभी तक मैंने बताया आपको ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, इस फंक्शन के लिए जैसे जैसे हमारा x 2 के क्लोज जा रहा है, हमारा ये जो कर्व होगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2, ये जो कर्व है, ये जो इक्वेशन है, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रही है जो सॉलिड लाइन से बना हुआ है. हमने देखा जब हमारी कर्व की वैल्यू 2 के क्लोज जाती है तो वो एक लाइन को अप्रोच कर रहा है. यस और नो? जब x की वैल्यू 2 को जा रही है तो एक लाइन वर्टिकल लाइन को अप्रोच कर रहा है, x इज इक्वल टू 2. यस और नो? Yes, ma'am. x की वैल्यू जब हमारी 2 को अप्रोच कर रही है तो हमारा इस पे वर्टिकल लाइन है, तो ये कैसे हमारा सो दिस इज वर्टिकल लाइन. अब अगर हम यहाँ पर देखें y जब हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है हमारा कर्व अप्रोच कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन को y इज इक्वल टू 0 को. यस और नो? जब हमारा x पॉजिटिव या नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y हमारा किसको अप्रोच कर रहा है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 0 को. और जब हमारा y पॉजिटिव या नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तब हमारा कर्व अप्रोच कर रहा है एक वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 2 को. अभी जो मैंने कहा कि अप्रोच कर रहा है इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन, इज दिस क्लियर टू ईच वन ऑफ यू Yes. इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस एग्जांपल? सो ये जो लाइंस है जिसको हमारा कर्व अप्रोच करता है, या x की वैल्यू को जब हम बहुत बड़ा करते हैं या y की वैल्यू को, तो इनको कहते हैं एसिम्पटोट्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इज एसिम्पटोट्स. इसका सेकंड पार्ट है कर्व ट्रेसिंग. कर्व ट्रेसिंग मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी, लेटर ऑन कराऊंगी. तो एसिम्पटोट क्या होता है? एन एसिम्पटोट इज द लाइन दैट अप्रोचेस क्लोजर टू अ गिवन कर्व एज वन और बोथ ऑफ x और y कोऑर्डिनेट्स टेंड्स टू इंफिनिटी.
या तो दोनों इन्फिनिटी को जा रहे हैं या दोनों में से कोई एक इन्फिनिटी को जा रहा है, बट कभी भी उस वो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करेगी कर्व को। अगर आप यहाँ से देखो इसमें, जब x आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है तो ये कर्व अप्रोक्सीमेटली y इज इक्वल टू 0 लाइन को अप्रोच कर रहा है, पर कभी भी y इज इक्वल टू 0 लाइन को मतलब x एक्सिस को कभी मीट नहीं करेगा। ऐसे ही जब हमारा y पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है तब हमारा ये कर्व अप्रोच कर रहा है लाइन x इज इक्वल टू 2 को, बट x इज इक्वल टू 2 तो कभी वैल्यू ले ही नहीं सकता ये कर्व, यस और नो। जब मैं 2 के बहुत क्लोज चला जाएगा ये x माना x इज इक्वल टू 2 के बहुत क्लोज जाएगी वैल्यू, बट कभी भी x इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑब्टेन नहीं करेगी। Is the definition of asymptote clear to everyone? Yes, ma'am. Now there are two types of asymptotes. One is rectangular asymptote, another is oblique asymptote. Rectangular asymptote जो भी हमने यहाँ पे observe किया है, these are the vertical asymptotes and the horizontal asymptotes. ये vertical line है, so for this function x is equal to 2 is a vertical asymptote and y is equal to 0 is the horizontal asymptote. ऑब्लिक एसिम्पटोट्स क्या होंगे? वो लाइन जो ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, ऑब्लिक है, दैट मींस मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये लाइक दिस लाइन। नेक्स्ट में आपको दिखाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, ऑब्लिक मैंने फॉर्म नहीं किए। ऑब्लिक का अगर आप एग्जांपल देखना चाहो, सपोज y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू हमारी एक लाइन होगी जो पास करेगी ओरिजिन से, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्लिक एसिम्पटोट। ठीक है, जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ एसिम्पटोट वंस अगेन एंड दिस रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट आल्सो, जस्ट गो थ्रू दिस। पढ़ लिया मैम। Is this clear to everyone? What is asymptote and rectangular asymptote में क्या है हमारा? If an asymptote is parallel to x-axis or to y-axis, then it is called rectangular asymptote. Now the asymptote parallel to x-axis is your horizontal asymptote and parallel to y-axis is your vertical asymptote. Now oblique asymptote, if an asymptote is neither parallel to x-axis nor to y-axis, then it is called oblique asymptote. Oblique asymptote कब होगी? An oblique asymptote occurs when degree of polynomial in the numerator is greater than that of the polynomial in the denominator. ये एक जनरल फैक्ट है फॉर द रैशनल फंक्शंस, बट और भी कर्व्स हो सकते हैं जिनका हमारा ऑब्लिक एसिम्पटोट हो, जिसको फाइंड आउट करने का तरीका मैं भी आपको बताऊंगी। नॉर्मली जो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स होते हैं वो रैशनल फंक्शंस के लिए होती है। तो रैशनल फंक्शंस में क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ग्रेटर इन द न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। इन दैट केस ओनली ऑब्लिक एसिम्पटोट्स होंगी। नाउ अब आपको फाइंड आउट कैसे करना है? मेथड फॉर फाइंडिंग रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट। अगर आपको एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो भी आपकी इक्वेशन गिवन होगी जिसके लिए आपको एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करनी है, आपने x की हाईएस्ट पावर पहले फाइंड आउट करनी है, फिर उसका कोफिशिएंट देखना है एंड देन यू हैव टू इक्वेट दैट कोफिशिएंट टू 0, दैट विल गिव यू एन एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ दैट लाइन? जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y is equals to में a. yes, and parallel to y axis के लिए x is equal to a, where a can be any number. So अगर आपको x axis के पैरेलल आपको अगर एसिम्पटोट निकालने तो x की हाईएस्ट पावर देखना, उसके कोफिशिएंट को 0 पुट करके सॉल्व कर लेना। अगर y axis के पैरेलल आपको एसिम्पटोट निकालनी है तो हाईएस्ट पावर y की देखना, जो भी इक्वेशन गिवन है, और उसको सॉल्व करना इक्वेट करके 0 से।
Like, say this example. Now you have to find asymptotes parallel to the axis of the curve x square y cube plus x cube y square is equal to x cube plus y cube. सबसे इजी तरीका क्या है? सबसे पहले आप एक राइट हैंड साइड को जीरो बना लो. either make the left or the right hand side zero. तो हम यहाँ पे राइट साइड को जीरो बना रहे हैं. जो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू वाली टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है. नाउ लुक फॉर द एक्स power of x in each of the term. Here the power of x is 2. Here it is 3. here 3. Here x की पावर is 0 है ही नहीं. तो सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर x की क्यूब है तो उसके कोफिशिएंट्स को करेक्ट कर लेते हैं. x की पावर क्यूब इंटू यहाँ से y स्क्वायर यहाँ से -1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब. और अगर चाहे तो हम वाई क्यूब भी कॉमन लेके यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 0. अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है तो एक्स का हाईएस्ट पावर एक्स की पावर हाईएस्ट पावर है 3. उसका कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर -1. वाई स्क्वायर -1 को 0 पुट किया, सॉल्व किया, यू गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू प्लस -1. So these are the horizontal asymptotes. वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के लिए y की हाईएस्ट पावर, यहाँ से तो y की पावर मिलेगी 2. अगर यहाँ दोनों टर्म्स को अगर एक्सपेंड करूंगी, यहाँ पे कोई भी नहीं है और यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर हमें मिल रही है 3 और उसका कोफिशिएंट क्या है x स्क्वायर -1. उसको 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू प्लस -1 आ रही है. सो दिस इज द अदर एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द y axis. yes. So is the process for finding the rectangular asymptotes clear to everyone? It's very easy. अगर x एक्सिस के लिए निकालनी है, x की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करो, कोफिशिएंट को इक्वेट करो, 0 से सॉल्व करो. y एक्सिस के लिए निकालनी है तो y की हाईएस्ट पावर आइडेंटिफाई करो, उसके कोफिशिएंट्स कलेक्ट करो, इक्वेट करो 0 से और सॉल्व करो. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Now what is difficult? The difficulty is in finding the oblique asymptote. तो इस मेथड को बहुत ध्यान से समझना, oblique asymptote कैसे निकालेंगे. Now the general form of an oblique asymptote will be y is equal to mx plus c, where m is the slope of the line and c is the कौन सी फॉर्म है ये लाइन की? slope form. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो ये जो c है वो हमारे को y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है 0, c, y इंटरसेप्ट, वहां से हमें c की वैल्यू मिलेगी. तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट जो होगी, जो ना तो कि हमारी पैरेलल होगी x एक्सिस से ना ही y एक्सिस से, उसकी फॉर्म क्या होगी? y is equal to mx plus c. Now before starting explaining this method, I'm sharing a rejoining link. ठीक है, rejoin कर लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ मेथड.
Now look at this equation first. The equation of the curve is x cube plus 2x square y minus xy square minus 2y cube plus xy minus y square minus 1 equal to 0. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करनी है. जब हम हाईएस्ट पावर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो हम कंबाइंड पावर लेंगे. जैसे एक टर्म में जो भी वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल x, उसकी पावर क्या है 3. नेक्स्ट टर्म में वेरिएबल है x और y, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है. कंबाइंड पावर वेरिएबल की कितनी हो गई 3. नेक्स्ट वाले टर्म में कंबाइंड पावर वेरिएबल्स की क्या होगी 3. इसमें भी 3. here in the Two. term Two. xy it's 2, here it's 2, it's यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है. तो सबसे पहले हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, यहाँ पे 3. तो हम एक फंक्शन फॉर्म करेंगे. फंक्शन हम phi3x, y. phi3x, y का मतलब हमने वो सारी टर्म्स कलेक्ट करके एक फंक्शन फॉर्म किया जहाँ पे पावर वेरिएबल की 3 है. तो 3 वाली पावर्स की जितनी भी टर्म्स थी हमने उससे एक फंक्शन फॉर्म कर लिया phi3 of x, y. phi2 of x, y क्या होगा, वो सारी टर्म्स जिनकी पावर्स 2 होगी उससे हम ये फंक्शन फॉर्म करेंगे phi2 of x, y. यहाँ पे अभी जो हमने इक्वेशन भी करी थी उसके लिए xy माइनस वाई स्क्वायर. सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम एक फंक्शन, फर्स्ट डिग्री के लिए हम एक फंक्शन फॉर्म करेंगे. फर्स्ट डिग्री के बाद हमारा जो कांस्टेंट होगी उसको हम k से डोनेट कर रहे हैं. अगर आप मेथड देखोगे तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन ऑफ द कर्व हमने इस तरीके से ली है जनरल फॉर्म. तो यहाँ पे जो pn ऑफ x, y है वो सारी टर्म्स होंगी x और y की जिसमें कंबाइंड पावर उनकी n है. फिर उसकी एक लोवेस्ट पावर n-1, देन n-2, लास्ट में 1 पावर वाली होगी, उसके बाद कांस्टेंट k इक्वल टू 0. where pn of x, y denotes the term of highest degree of curve. सबसे पहले आप ये हाईएस्ट वाला लिखना है इसमें. अब आपने क्या करना है, हर एक जगह जितने भी हमारे फंक्शंस बनने, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन बेसिकली, उसके अंदर आपको x को 1 पुट करना है और y को m पुट करना है. जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर x को 1 पुट करना, y को m पुट करना. तो आपको एक इक्वेशन किसमें मिलेगी, इन वेरिएबल m. Let's see the next question. देखो हमारी ये इक्वेशन हमारे पास ये थी, यहाँ पे x को 1 पुट कर रहे हैं, m को हम y को हम m पुट कर रहे हैं. x को 1 पुट करेंगे, here it will be 1, this term will be 2m, this will be minus m square, this will be minus 2m cube plus m minus m square minus 1. हमने ये इक्वेशन फॉर्म करी. ओके यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, Ma'am. ma'am. यस. मैम x की वैल्यू 1 पुट पूरी इक्वेशन में करनी है कि जो हमने phi3 लिया उसमें करनी है? ओरिजिनल में भी करना और वहीं से आप आइडेंटिफाई करना. चलो ऐसा करो, आप ना जो आपकी phi3 फंक्शंस फॉर्म करे उसमें फाइंड आउट, उसमें पुट कर देना जो भी फाइंड आउट करे हैं. ओके मैम. मैम मैं थोड़ा सा फिर से बता सकते हो, आप आवाज कट गई थी. कोई नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. सपोज यू आर गिवन दिस इक्वेशन ऑफ द कर्व. आप इसमें से पहले हर एक टर्म की कंबाइंड वेरिएबल के साथ पावर आइडेंटिफाई करो. यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है, पावर क्या है 3. नेक्स्ट में वेरिएबल आपके पास x और y दोनों है, कंबाइंड पावर क्या है अगेन 3. हेयर अगेन द कंबाइंड पावर इज 3. हेयर ऑल्सो 3 वेरिएबल की पावर. यहाँ पे क्या है पावर, कंबाइंड पावर वेरिएबल्स की 2. Here it's also 2. Then there is constant term. तो आप एक फंक्शन फॉर्म करोगे. पहले हाईएस्ट पावर आपकी 3 है यहाँ पे. तो जो हाईएस्ट पावर कर्व की 3 आई वहीं से हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम एक phi3 ऑफ x, y, ये फंक्शन फॉर्म होगा उन सारी टर्म्स में से जिसकी पावर 3 थी ओरिजिनल कर्व से. देन phi2 ऑफ x, y, ये उन टर्म से फंक्शन फॉर्म होगा जिनकी पावर 2 थी ओरिजिनल इक्वेशन में जो कर्व की है. ऐसे ही phi1 ऑफ x, y और लास्ट में कांस्टेंट टर्म. इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन कि फंक्शंस कैसे फॉर्म करे हैं? यस मैम. इसके बाद जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर फंक्शन है phi3, उसके अंदर x को 1 पुट करो और y को m पुट करो. सिमिलरली phi2 में भी अगर phi1 होता, जैसे यहाँ पे जो है 1 डिग्री टर्म कोई भी नहीं थी तो phi1 यहाँ पे 0 है, अगर वो भी होता तो हम उसमें भी पुट करते.
ठीक है। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला है उसमें हमने x को 1 पुट किया, y को m पुट किया, तो इक्वेशन क्या बनेगी 1 क्यूब इज 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू m विच इज 2m माइनस 1 इंटू m स्क्वायर विच इज माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब। अब ये जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला है लोएस्ट में भी हमने पुट कर ली, और अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, ऐड करके आपकी ओरिजिनल इक्वेशन देखो ये बनेगी, ऐड करके दोनों को जो ओरिजिनल इक्वेशन से आपको इक्वेशन मिलेगी विच इज Tm। ये रहा जो आपका थर्ड वाला आया है हाईएस्ट ऑर्डर वाला जिससे आपने फंक्शन फॉर्म किया है, उसको आपने इक्वेट करना है 0 से और सॉल्व करना है m के लिए। इसका मतलब आपको जो x को 1 और y को m है वो आपने एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में भी पुट करना है और जो आपने ये फंक्शंस फॉर्म करे हैं उनमें भी पुट करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने फंक्शंस फॉर्म करे हैं ऑफ ईच डिग्री। सेकंड यू हैव पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन फी एन ऑफ x, y जो भी आपने फंक्शंस फॉर्म करे उन सब में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जो फी एन ऑफ m जो हाईएस्ट ऑर्डर फंक्शन फॉर्म हुआ था उससे जो इक्वेशन ऑब्टेन होगी x को 1 पुट करके y को m पुट करके वहां से सारे रियल रूट्स निकालने हैं। ये ध्यान रखना रियल रूट्स निकालने हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें φ3 ऑफ 1 n, φ3 ऑफ m क्या बना है, ये हमारा बना है, इसको हम 0 पुट कर रहे हैं, 0 पुट करके इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने हाईएस्ट से लोवेस्ट ऑर्डर में लिखा है इसको, -2m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। पहली दो टर्म में से पहली और थर्ड टर्म, इन दोनों टर्म में से m स्क्वायर को कॉमन लिया माइनस m स्क्वायर को, सो हियर यू विल गेट 2m प्लस 1। इन दोनों टर्म में से 1 कॉमन लिया, यू विल गेट 2m प्लस 1 इन द ब्रैकेट। 2m प्लस 1 को कॉमन लिया, हियर यू गेट माइनस m स्क्वायर प्लस 1। माइनस m स्क्वायर प्लस 1 इज रिटन एज 1 माइनस m स्क्वायर यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी which is equal to a minus b into a plus b. You can write 1 minus m square as 1 minus m into 1 plus m. और ये वाला फैक्टर एज इट इज इक्वेट करेंगे 0 से m की वैल्यू क्या क्या आ रही है 1 -1 एंड -12। जो थर्ड ऑर्डर फंक्शन हमने ऑब्टेन किया था उसमें x को 1 पुट किया, y को m पुट किया, जो इक्वेशन मिली है m के अंदर उसको हमने सॉल्व करके m के रियल रूट्स फाइंड आउट कर लिए। यहाँ तक क्लियर है रूट्स फाइंड आउट करने तक? यस मैम। यस मैम। अब रूट्स फाइंड आउट करने उसके बाद आपको देखना है कि आपके जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट हैं या रिपीटेड हैं। इस केस में सारे रूट्स कैसे हैं आपके? डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट हैं। अब हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है एसिम्प्टोट की वो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या था स्लोप, उसकी वैल्यूज तो आपको मिल गई है, अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू। यस और नो? यस मैम, यस मैम। अब अगर हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो आपकी जो c की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है वो फॉर्मूला है ये। From this third step and fourth step I will explain in the next class. Time is almost up. Okay? अभी तक जितना बताया है जितना गो थ्रू करके आना, इन द नेक्स्ट क्लास दिस एसिम्प्टोट टॉपिक विल बी ओवर। ओके? और नॉर्मली क्वेश्चन आता है पेपर में, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स एंड द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स आल्सो। मतलब कंप्लीट जितनी भी एसिम्प्टोट्स होंगी गिवन कर्व की वो आपको सब फाइंड आउट करनी आती है। ठीक है? एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. आई एम एंडिंग द क्लास। मैम और यस, मैम इसकी पीडीएफ सेंड कर दोगे आज? हाँ मैं कर दूंगी। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम।